हम्म, मैंने जाना मुझ में तू है, मैंने जाना मुझ में तू है, दिल है नादां कैसे अब कहें, दिल है नादां कैसे अब कहें, तेरे आस पास दिन सारा, ना जाना कब मैं दिल हारा, थोड़ा सा तूने बहकाया, बहलाया दिल को सहलाया, मैंने जाना मुझ में तू है, दिल है नादां कैसे अब कहें। Super excited to be sharing this episode, especially if you're my friend who loves indie music. I've got something for you. Speaking to me in this episode is Asa Singh, a passionate musician who's making it big across music streaming platforms this season. Asa Singh speaks to me about his journey so far, how he's managed to keep at it regardless of the wait time. He talks to me about the craft, tips for budding musicians, what it takes to make it big, how authenticity matters above all, and a whole lot more. Go check out the episode. Until the next one, stay tuned. This is Karishma. I'll be back yet again. Until then, Tata. Thank you so much, Asa, for joining me on this episode of Karishma Connect. It's a pleasure to have you. I look forward to hearing your story. Of course, have heard a lot of your music as well, and I'm so happy to have you today on this podcast. Thank you. Thank you so much, Karishma. I'm more than happy. It's my pleasure to be over here. This is my first podcast, Spotify podcast. I'm really very excited, and thank you for calling me here. And yes, I'm like all up for a great chat session. Lovely. Love the energy. That's exactly what I want. I've had so many firsts on this podcast, and it's something I usually really. It's even there on my kit that the biggest thing I'm proud of on this podcast is that I've had so many people come in, and it's always special who've done it for the first time. Now, Yeah. the first question I ask on this podcast always is that tell me about your journey so far, because nobody would say it better than you do, and I don't even want to take that step of defining it for you. So please go ahead. So the journey so far is it's a vast spectrum, or a very big thing that I might not be able to finish in, like, a few sentences, because sabke saath, like, it's not just me. I think with everyone, you start in a different way. Yeah. When you're starting something professionally, or in whatever ways, you Mm. start with a different mindset, and as along you go with the journey, as in how reach different steps and goals, and Mm. then you start shaping your like all the goals on the way, like तुम Yes. किसी किसी कुछ सोच के स्टार्ट करो कि यार ये तो मैं इस तरीके से ऐसे ही कर दूंगा, and then when you actually start doing it, then you realize कि it's not as easy or as straight as it looks. So the Yes. journey so far it's been very interesting, very exciting. It's always been very positive, touchwood, and it's also been very like a long one, but still a longer way to go, because I Mm. started my professional journey quite at an early age, and tab se, like, I've always been surrounded by this thing Mm. since childhood. My father is a musician and a singer in this industry since more than now 35 years, and Wow. my mom's also an artist. She's a classical dancer and actor. So I was born into a family of artists, and so it's been like बचपन से ये सब चीजें, I think I can say कि journey वहीं से start हो गई थी actually, जब when I was born into this family. Mm. After like 2 or 3 years only, I started, singing and humming along with my dad, or when he used to practice, I used to do that. So वहीं से पता लग गया था उनको भी कि शायद इन दोनों में, मेरे और ऑब्वियसली आकाश में, ये जीन्स आए हैं म्यूजिक के, एंड सेंस आया म्यूजिक का. सो वहीं से देन इट स्टार्टेड, एंड बचपन से सीखना स्टार्ट हुआ, एंड देन स्कूल एंड कॉलेज के साथ साथ म्यूजिक वाज ऑलवेज देयर. Mm. And then karte karte, like when I was in college only, I started performing with my dad for his shows. Like I started open for him, and to get that experience and to get that whole uh,
idea of how like to be on stage and to Yeah. perform on stage, different events. तो वहीं से start हो गया था. So तब से लेके अब तक it's been a very interesting, a very learning journey. Like I've always learned from different phases of it. So yeah, very exciting actually. And I'm now at this point, I'm more excited. I'm looking forward for the what holds up for me in this coming years, because अब जो मैं जिस point पे हूँ, it's a very interesting point, very exciting point, like almost similar to what I had actually imagined at one point. So तो यहाँ से now I'm very excited कि अभी आगे कैसे क्या होता है and all. So yeah. Yeah. Because you're at that standpoint where you're going towards your dream. Am I correct? Yes. Is that yes मतलब जिस तरीके से मैंने जैसे लाइक आई सेड जब मैंने स्टार्ट किया था तो जब जिस तरीके से मैंने सोचा था वो करते अब जाके उस पॉइंट पे आ गया है कि नाउ कि वो जो मैंने सोचा था अब जाके वो सब इट्स ऑल शेपिंग अराउंड एंड इट्स ऑल फॉलिंग इनटू प्लेसेस तो सो यहाँ से अब कैसे आगे क्या होता है सो दैट्स वेरी आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी अबाउट दैट. So yeah, but all I think everything the journey has been very good and very exciting, very learning and very good experiences all along the way. So yeah. But tell me about that waiting period, Asa, because that is the difficult part. That is something that I think you at one point you just are very used to it, the waiting period. मतलब मेरा तो स्पेसिफिकली मेरे लाइफ में तो ऐसा है कि मेरे लाइफ में तो लिखा ही हुआ है कि कुछ ना कुछ तो डिले होगा, लाइक अ लॉट ऑफ डिलेज आर गोइंग टू हैपन. वो मेरे को सबने बोला हुआ है. You know, in this industry you tend to see your horoscope, you know, like यार मेरे में कैसा क्या है and all. तो everyone has told me कि देखो डिलेज तो होगा, you cannot do anything about it. And वैसे ही इस इंडस्ट्री में इतना डिले होता है कि जब आपको आपके उसमें लिखा हुआ है कि आपके डिलेज होगा, देन यू आर जस्ट लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड कि ज्यादा यू नो इम्पेशेंट होके या ज्यादा उसके बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है. जब जब वो होना होगा तब वो ऑब्वियसली होके रहेगा, आपसे कोई आपका वो छीन नहीं सकता. So I've become very used to it now, and that's why I said कि now at this point मैं क्योंकि इतनी सारी चीजों में ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे वेट किया हुआ है कि उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि जो चीज के बारे में तुम वेट नहीं करते हो, जो जो चीज के बारे में तुम सबसे कम सोचते हो, वो ऐसा इट टर्न्स आउट टू बी इन सच अ वे दैट that's when you realize कि there's nothing in your hand. तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं एक्चुअली. वो जो होना है जिस तरीके से होना है वैसे ही होके रहेगा. Your motive or your purpose should just be like to be at it sincerely and be disciplined about your work, be sincere about your work, and बाकी everything is going to happen जैसे होने वाला है. But you need to be very sincere at your work. That's what I've learned. So I'm used to that weight thing. It's a very bad thing though. Like it's a कुछ लोग नहीं वो handle कर पाते weight period क्योंकि it really you know plays with your mind also, because in this industry अपना entertainment industry में like you said competition जैसे पॉडकास्ट वाली इंडस्ट्री में भी आ गया है, वैसे कंपटीशन इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा आ गया है कि फॉर एवरी प्रोजेक्ट देयर आर at least 100 to 200 people ready to do that project. So if you're not there, there are so many others. So वो waiting period and वो सब चीजें इतनी ज्यादा हो गई कि आजकल बहुत लोग वो ले भी नहीं हैंडल भी नहीं कर पाते. But luckily I had started at a point where things were very different. Things were very actually slow at that time क्योंकि इतना सोशल मीडिया, इतना क्विकनेस, इतना ऐसे रिस्पॉन्सिव चीजें वैसे भी नहीं थी. टाइम से मैंने स्टार्ट किया था तब तो वैसे ही बहुत सारी चीजें अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्पेस से होती थी. अब ऐसा हो गया कि एवरीथिंग इज हैपनिंग वेरी क्विकली. सब यू नो एक एक दिन में या एक एक रील से इतना सब कुछ सारा कुछ हो जा रहा है. तो लोगों को लग रहा है कि हर चीज जल्दी जल्दी होनी चाहिए सबके साथ. लाइक मेरे साथ भी होनी चाहिए, उसके साथ भी हो रही तो मेरे साथ भी होनी चाहिए. तो मुझे अभी वो मेरे को लगता है कि इट्स जस्ट दैट कि उनका उस तरीके से है होना था, लिखा होता तो होएगा. हर किसी का एक अलग तरीके से एक हर किसी का एक पाथ या एक टाइमलाइन एक सेट होता है कि सबका एक अपने हिसाब से एक यू नो चीजें होंगी. जरूरी नहीं कि उसकी जिस हिसाब से हुई वैसी तुम्हारे भी हिसाब से हो, तुम्हारी शायद अलग हिसाब से होगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर ओन पाथ. आधे से ज्यादा लोग बेचारे इसमें रह जाते हैं कि वो उस पाथ से चले जाते हैं जहां से किसी और का हुआ है, और फिर उनका उसमें नहीं होता एंड दे थिंक यार हमारा क्यों नहीं हो रहा है. So it's that you need to stick to your path, have faith in your path,
and then things will work out in your favor. The destination also depends on the person कि उसका उस specific इंसान का अपना destination क्या है. Yes. Like सबके डेस्टिनेशंस और गोल्स सब अलग होते हैं, तो वो जिनके जैसे गोल्स होते हैं वो उस हिसाब से ही अपना एफर्ट्स डालते हैं, अपनी मेहनत करते हैं. तो किसी किसी का लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन होता है, जो जिनका लॉन्ग टर्म होता है. आई एम अ वेरी लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन काइंड ऑफ गाय. मेरे को शॉर्ट गोल्स या ये सब चीज छोटी छोटी चीजों से कोई मतलब नहीं. मेरा है कि एंड प्लान है, उसको मद्देनजर रखते हुए अभी मैं सब चीजें उस तरीके से करना चाहता हूँ. ये नहीं कि मेरे को आज के टाइम पे ये फायदा कर रहा है तो मैं आज ये कर लूंगा. तो मुझे पता है कि आज शायद अगर मैं ये कर भी लूँ, थोड़े टाइम बाद फिर वक्त चेंज हो जाएगा, तो फिर ये जो चीज मैं करूंगा ये फिर मायने नहीं रखेगी बाद में. तो एक जो चीज जो हमेशा मायने रखने वाली है उसको देखे. सो इट डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनेशन ऑल्सो ऑफ द पर्सन, कि उनका कितना वेटिंग पीरियड, उनको उनको कितना पेशेंट रहना है, या उनको जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीजें करनी है ताकि अभी के लिए वो सॉर्ट हो जाए. तो ये सब भी बहुत डिपेंड करता है. सो इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव. Yes, very true. And then Aapne, this point that you touched about things being so overnight today, because yes, there are artists who are getting overnight success as well on Instagram and all these platforms. How has that changed the scene? How has the music scene evolved with time? And I'm seeing a lot of indie push right now. What's exciting about the phase that we're in? So, pros and cons of everything. Like the pros of this thing, the social media and the whole virality of things and widespread things and all. इसका एक pro ये है कि a lot of people are getting the chance to put out their stuff very directly to the audience. जो पहले थोड़ा सा लॉन्गर रूट था, या पहले एक तरीके से आपको एक प्रोसेस फॉलो करके फिर जाके वो कहीं मीडियम में दिखता था. अभी एक हो गया कि डायरेक्टली आ जाता. तो दिस इज अ वेरी बिग प्रो फॉर द पीपल. बट ये इसी का कौन ये है कि क्योंकि ये सबके लिए अवेलेबल हो गया, सो एवरीवन हु थिंक्स दैट दे आर इवन 20% फाइन और 20% 30% they are good at something, so they'll put it out there, and that is leading to overload of content, over supply of content, and then that in turn is leading to overconsumption of content from the audience. And overconsumption के बाद ऐसा हो गया कि attention span इतना कम हो गया है कि लोगों को हर हर 15-20 सेकंड में they are looking, like within 15-20 seconds they are looking at 3 reels at least. Yes. In reel 15 सेकंड में. So they don't have that much of capacity or that much of bandwidth to actually focus on one thing and live with it, let it grow on you. ये कौन हो गया. So pro इसका ये है कि it's very easy to directly put out your stuff, but then उसका ही कौन है कि वो इतना सारा हो गया कि कोई भी उठ के डाल देता है. And then that is also leading to promotion of mediocrity of the content. कि ठीक ठाक कंटेंट भी है तो भी डाल दिया, लेकिन वो क्या बोलते हैं, किसी एक फैक्टर की वजह से वो चल गया, वायरल हो गया, फिर सब लोग वही उसी तरीके का कंटेंट डालने लग जाते हैं. तो मीडियोक्रिटी ही फिर वो हो जाती है. फिर सब लोग सोचते हैं कि वो ट्रेंड चल रहा है तो उस हिसाब से अब वो ही बनाओ क्योंकि अभी वो ट्रेंड चल रहा है. तो ये सब इट्स ऑल इंटरलिंक्ड एंड ऑल इंटरकनेक्टेड. आई थिंक दीज आर द टू मेजर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द टुडेज सोशल मीडिया एरा एंड ऑल. और इससे ही होता है कि ओवरनाइट मिल भी जाता है, बट देन फिर वो कुछ टाइम के बाद वापस से ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि एकदम से फ्लेम आता है, देन वो एकदम से ठंडा हो जाता है. देन दे आर थिंकिंग अब व्हाट नेक्स्ट, अब हम लोग और क्या ऐसे करें. और एक और चीज भी मैंने नोटिस किया है, मैंने कितने ऐसे सिंगर्स को ही देखा है. आई टॉक अबाउट सिंगर्स बिकॉज मैं एक वो उन लोगों को बहुत देखा हुआ है जो सिर्फ सिंगिंग करते थे, अच्छा गाते थे, एंड दे वर लाइक गुड आर्टिस्ट एंड गुड म्यूजिशियंस. बट उनका सिंगिंग में ऐसा जितना कुछ उनको शायद इतना वो नहीं मिल रहा था, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, इतना कुछ व्यूअरशिप नहीं मिल रही थी. सो दे स्टार्टेड पुटिंग आउट क्या बोलते हैं, लाइक स्पेसिफिक वेरी वायरल काइंड ऑफ अ कंटेंट, कि मतलब एक कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को चूज करके उसके अराउंड ही वो कंटेंट डालने लगे. सिंगिंग बेस था पर एक टॉपिक को लेके था, और वो टॉपिक चल गया, तो अब उनको अपना पूरा प्रोफाइल उस टॉपिक के हिसाब से ही मैनेज करना पड़ता है. अब वो लोग like they were singers in the first place, but now they have to like cater to that specific topic only, क्योंकि उनकी पूरी ऑडियंस ही उस हिसाब से बिल्ड हो गई है. अगर उससे अलग कुछ भी करेंगे तो वो ऑडियंस इतना उसको ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उनको वही चाहिए. तो ये एक चीज भी हो गया कि यू नीड टू रियली बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू बिल्डिंग योर ओन ऑडियंस थ्रू द वे, क्योंकि आगे जाके यही ऑडियंस है जो तुम्हारी एक कल्ट फॉलोइंग या एक ऐसी फॉलोइंग बनती है जो तुम्हें हर वक्त हर
स्टेप पे सपोर्ट करती है। अगर Yeah. तुम वैसी ऑडियंस नहीं बना पा रहे हो जो थोड़े टाइम के लिए अगर तुमको अप्रिशिएट करी तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। Yeah. अलोंग द और 10 साल के बाद अगर वो ऑडियंस बड़ी हो गई उम्र में और उनको भी लगेगा कि ये क्या कर रहा है ये बचपना, तो फिर वो नहीं करेंगे सपोर्ट। सो आई सीन ऑल ऑफ दिस हैपनिंग क्योंकि आई स्टार्टेड माय दिस थिंग इंस्टाग्राम वगैरह तब स्टार्ट किया था जब इंस्टाग्राम में 15 सेकंड का वीडियो आता था सिर्फ। यू वर नॉट इवन अलाउड टू पुट 1 मिनट वीडियो। तो Yeah. मैं क्या करता था 15 सेकंड के 4-5 डालता था एक गाना करने के लिए। वो लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके 15 सेकंड्स का। एंड वहां पर लाइक तब लोग उसको क्या बोलते सब सुनते थे सब, मतलब बहुत वो कमेंट्स वगैरह सब आते थे, बहुत वायरल भी होते थे। और फिर उसके बाद जब ये सब सीन चेंज हुआ थोड़ा सा, ऐसे लॉकडाउन के बाद सीन चेंज हुआ, तो उसके बाद मैं अलग तरीके से डालने लग गया। क्या बोलते हैं, जैसे मैं रिकॉर्ड करके सब करके डालने लगा, तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं आप वैसे ही जैसे डालते थे ना, आप वैसे ही डालो। फिर जब मैं वैसे वापस डालू तो फिर वो लोग आके सुनते थे। तो एक ये चीज हो गया कि एक आपने चीज डाल दी और वो लोगों को पसंद आ गई, उनको फिर वो ही सुनना है और वो ही करना है। और मेरे जैसे आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा वो ड्रॉबैक हो जाता है, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट दैट आई लाइक टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, आई वुड लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड keep changing my genre or my style or do something new। बट ये एक चीज पे स्टिक रहने का थोड़ा सा मेरे लिए वो हो जाता। तो बट हो गया, ऑडियंस का और इन सब का कंजम्पशन का तरीका ही ऐसा हो गया, तो कभी कभी करना भी पड़ता है। I noticed your Instagram. Now, the first thing I noticed is that you've had a great year on Spotify. That's what kind of shot up on that scroll. Guilty as charged. But tell me, how have these platforms helped in the middle of all this clutter and glam and everything that we have? How have these platforms helped for budding artists to kind of put themselves out there? So platforms like Spotify, Apple, Wink, and all, I think they've helped the upcoming artists to, like I said, give that platform to directly put out your song to the audience, and they've managed to curate, all those songs and all specifically to certain audiences। Playlisting का आजकल बहुत एक important factor हो गया है for songs। तो इन प्लेटफॉर्म्स ने इस तरीके से हेल्प एक बहुत मेजर वे में किया है कि अगर आपने कोई भी अपकमिंग बडिंग आर्टिस्ट है, चाहे वो उसका दूसरा या तीसरा गाना हो, चौथा ही गाना हो, तो भी अगर वो आपने उसको सही तरीके से पिच किया, आपने उस स्पॉटिफाई की टीम से उनको पिच वगैरह करके उनको अपना गाना बताया है, और अगर वो गाना उस प्लेलिस्ट में आ गया, देन वो वहां से शॉर्ट शॉर्ट उसको एक ऑडियंस मिल जाएगी, उसको स्ट्रीमिंग मिल जाएगी, उसको लिसनिंगशिप मिल जाएगी, एंड दैट एनकरेजेस द आर्टिस्ट टू डू मोर फॉर दैट थिंग। तो ये इस तरीके से प्लेटफॉर्म ने काफी हेल्प किया है कि they've curated प्लेलिस्ट फॉर स्पेसिफिक ऑडियंसेस, एंड वो उस प्लेलिस्ट के ऑलरेडी फॉलोइंग शिप है, तो आपका गाना अगर वहां आ गया तो लोग सुनेंगे ही सुनेंगे, और अगर लोगों ने सुना उनको अच्छा लगा, देन वो they'll start following you and they'll start hearing your different songs also। So this is one of the major ways these platforms are helping artists, चाहे वो upcoming हो या बड़े हो। बड़े आर्टिस्ट का तो चलो they have a lot other things also, factors also playing the role of placement on the playlist, but जितने भी अपकमिंग हैं उनके लिए भी एक फेयर वो रखा हुआ है प्रोसेस, एक फेयर रूट रखा हुआ है। लाइक एवरीवन इज पिचिंग द सॉन्ग टू स्पॉटिफाई थ्रू द एप्लीकेशन, एंड आप विंक, चाहे वो विंक में हो स्पॉटिफाई हो, आप उनको मेल करो, ये सब करो, एंड इट्स अ फेयर प्रोसेस। तो सबको अपना एक चांस मिलता है, बेसिकली हर गाने को अपना एक चांस मिलता है। सो दैट इज अ वेरी बिग गुड थिंग दैट दीज प्लेटफॉर्म्स आर डूइंग फॉर द आर्टिस्ट, स्पेशली इंडी आर्टिस्ट जो अपने दम पे सारा कुछ करके देयर इज पुटिंग इट आउट देयर। सो इट एनकरेजेस द आर्टिस्ट आल्सो टू डू बेटर एंड टू डू मोर एंड टू बी कंसिस्टेंट एट इट। बाकी रेवेन्यू वाइज मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं खुद आई एम वेरी यू विल से, अब मैं क्या बोलूं टर्म, मतलब आई एम सो लॉस्ट अबाउट दैट होल रेवेन्यू थिंग कि मैं उस पे मेरा ध्यान ही नहीं जाता कि मैंने यहाँ से मेरे को ये पैसे लेना है, वहां से मेरे को ये कलेक्ट आ रहा है या वो आ रहा है, ये सब मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। आई एम वेरी मच जस्ट फोकस्ड ऑन पुटिंग अ सॉन्ग, मेकिंग अ सॉन्ग एंड पुटिंग इट आउट देयर, एंड देन जस्ट लेटिंग दैट सॉन्ग डू इट्स वर्क एंड रीच एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। अब वो रेवेन्यू वाला सिस्टम, मतलब क्योंकि लाइक अ लॉट ऑफ पीपल दे डू इट फॉर दैट रेवेन्यू थिंग, कि उनको पर्स, वो लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा स्ट्रीम्स रहेंगे तो पर स्ट्रीम का रेवेन्यू आता रहेगा, बट आई हैव नेवर फोकस्ड ऑन दैट थिंग।
कि मैं डालूंगा तो अभी मेरे को इतने, अब मेरे इतने स्ट्रीम्स हो गए तो मुझे इसका भी इतना आएगा, तो मेरे को इसके बारे में आई नीड टू आस्क फ्रॉम देम, या मेरे को वो सब करना है, वो सब बहुत सारी चीजें होती है, वो उसमें मेरा ध्यान ही नहीं जाता अभी। बट वो कल ही मैंने रात को एक्चुअली मैं कहीं बैठा था, सेशन में बैठा था, तब भी मैंने ये बात छेड़ी थी कि मुझे ध्यान ही नहीं जाता ये सब चीजों का, कि वो भी करना है, यहाँ से भी यूट्यूब से भी पैसे आ रहे, वो उसको भी कलेक्ट करना है वहाँ, क्योंकि आई हैव डन इट विद डिफरेंट एजेंसीज एंड ऑल, तो उनके थ्रू से आई हैव टू कलेक्ट एंड ऑल, वो सब चीज भी एक अलग है, मेरा ध्यान नहीं जाता है। तो मेरे लिए Spotify एंड ऑल दीज प्लेसेस प्लेटफॉर्म्स आर मेनली फॉर गेटिंग द सॉन्ग आउट देयर टू एज मच एज ऑडियंस एज पॉसिबल, मेकिंग इट लाइक जितना हो सके लाइक अ वर्ल्ड वाइड हिट, एंड जितना हो सके लोगों तक पहुंचे, मेरे लिए वो है, लाइक दैट्स व्हाट मैटर्स थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स। बाकी पैसे तो अलग अलग जगह से बन जाते हैं, बट ये सब चीजों में आई एम जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग कि गाना पहुंच जाए बहुत सारे लोगों तक, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे प्रीवियस एपिसोड पे, इट वाज विद द डायरेक्टर ऑफ एन अरबिक फिल्म, एंड आई हैड आस्क्ड हर, आई सेड व्हेन डू यू नो दैट इट इज द टाइम टू लेट गो ऑफ समथिंग, बिकॉज एक शॉट हो गया है, हाउ डू यू नो कि अच्छा ठीक है अभी ये शॉट रेडी है और ये जा रहा है। तो आई वुड आस्क यू आल्सो दैट क्वेश्चन, दैट व्हेन डू यू नो कि अच्छा अभी ये हो गया है, ये प्रिपेयर्ड है, एंड नाउ जस्ट आई नीड टू पुट द म्यूजिक आउट देयर। Oh, this is a very difficult point to actually, क्या बोलते हैं, नो फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, कि कब गाना रेडी है और उसको डालना चाहिए। बट आई थिंक जैसे, क्योंकि मेरे लिए ऐसा है कि मैं ना एक गाना बना लेता हूँ, फिर उसको 1-2 साल तक अगर वो गाने पे मैं नहीं काम करूँ, मुझे ऐसे मेरे को अंदर से वो इंट्यूशन या अगर कनेक्ट एक रहता है ना कि अब इस पे कुछ और भी कुछ हो सकता है, बेटर हो सकता है, बेटर हो सकता है, अगर वो चीज़ मेरे दिमाग में है, देन आई विल लेट दैट सॉन्ग सिट फॉर अ व्हाइल एंड मे बी कम बैक टू इट लेटर। तो मेरे लिए जब तक वो एक इंट्यूशन और एक पर्सनल कनेक्ट या एक पर्सनल एनर्जी अंदर से एक आवाज नहीं आती है, तो तब तक मैं वो गाने को कुछ ना कुछ आई कीप डूइंग इट। और जब फिर वो ऑटोमेटिकली व्हेन आई हियर द सॉन्ग, एक ऑटोमेटिकली सुन के ही पता चल जाता है कि अब ये गाने में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस इज एज गुड एज इट इज, एंड उसको डालना अभी बस उसको डाल दो। मैं किसी और की सुन के उस पे नहीं करता हूँ कि कोई और बोल रहा है कि अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, तब मैं वो नहीं करता। मेरे को जब तक खुद सुन के अंदर से ऑटोमेटिकली एक इंट्यूशन या एक वो ना आ जाए कॉलिंग कि हाँ नहीं अब ये गाना सही लग रहा है, अब ये बाहर डालना चाहिए, तब तक आई प्रोबेबली कीप वर्किंग ऑन दैट सॉन्ग। एंड आई थिंक दिस गेट्स बेटर वाइल डूइंग सॉन्ग्स, मतलब जितने आप गाने करते जाओगे उतना आपको और आइडिया आता जाता है कि एक प्रॉपर प्रोसेस एंड एक प्रॉपर क्या तरीका है गाना करने का, तो वो थोड़ा और बेटर होते जाता है। बट जब आप नए नए पहले पहले गाने बनाते हो तो तब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इसमें भी हो गया है कि नहीं हो गया और कुछ काम करना है कि नहीं। तो वो तब यू नीड टू जस्ट ट्रस्ट योर ओन इंट्यूशन इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करके फिर तुमको लगता है कि हाँ नहीं अब ये सही है। दैट इज वेरी पर्सनल कनेक्ट, खुद को पता चल जाता है कि ये सही है। Very true. What are the three things that people often don't know about a singer's life? Because I'm sure there's so much of effort that goes beyond actually putting that song out there. What are the three things that you think people don't really know about it? About a singer's life or like a musician or artist's life? Musician or artist? अच्छा, थ्री थिंग्स, एक तो ये है कि लोगों को शायद लगता होगा कि एज अ सिंगर या एज अ म्यूजिशियन you're always ready, like your voice is always ready, your singing is always at peak. That's not the case. Your voice and your mind, it needs to be very well connected with each other every time, and every time that's not possible. So a lot of times you need to जिसको हम रियाज बोलते हैं बेसिकली प्रैक्टिस, वो वही है कि आप माइंड और इसको गले को इसको सब कनेक्ट करके एक यू गेटिंग इट ऑल टुगेदर इनटू अ फ्रीक्वेंसी, एंड देन यू आर एट योर पीक परफॉर्मेंस। तो वो चीज लोगों को शायद नहीं पता होगी कि एज अ सिंगर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम हर वक्त वी कैन नॉट बी परफेक्टली सिंगिंग ऑल द टाइम एनी सॉन्ग। बहुत टाइम लगता है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा टाइम लगता है एक गाने को प्रिपेयर करके उसको प्रॉपरली गाने में बहुत टाइम लग जाता है। कभी 3 घंटा तो सिर्फ उस प्रैक्टिस को लग जाते हैं एक 5 मिनट का गाना गाने के लिए, और वो 5 मिनट का गाना गाने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए 2 घंटे और लग जाते हैं। सो इट्स लाइक अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। लाइक दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट कि
इट डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली डेज एंड ऑल्सो, बट ये एक जनरल एक है जो लोगों को शायद लगता हो कि सिंगर को गाना मिला, उसने गा दिया और वो सही हो गया, और फिर उसके बाद म्यूजिक बनाया और डाल दिया। ऐसा नहीं है। गाना बनाने में, गाने में उसके पहले का प्रेपरेशन बहुत लंबा हो जाता है, एंड स्पेशली फॉर एन आर्टिस्ट लाइक मी जो छोटी छोटी डिटेल्स पे बहुत फोकस करता है, तो मेरे लिए तो और ज्यादा हो जाता है कि यार मेरा वो प्रेपरेशन टाइम ही इतना ज्यादा हो जाता है। गाना 5 मिनट का हो, गाना और प्रेपरेशन अगर मैंने 3 घंटे का सही कर लिया तो गाना 5 मिनट का मैं 15 मिनट में भी गा लूंगा, एक टेक में गा लूंगा, बट वो प्रेपरेशन बहुत जरूरी होता है बिफोर सिंगिंग दैट सॉन्ग। सो दैट इज आई थिंक वन थिंग पीपल माइट नॉट नो कि वो प्रेपरेशन में बहुत टाइम लगता है, एंड देन यू हियर अ स्ट्रिंग सिंगर सिंगिंग आउट देयर, यू नो। और इट्स दूसरी चीज ये है कि आई थिंक ये तो एक मिथ है कि खाने पीने का और उस सब का चीज का एक रहता है ना कि लाइक ए सिंगर, ये लोगों को ये लगता है कि ठंडा पीने से या ये खाने से वो खाने से वो गला खराब हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो, इट्स नॉट अ मिथ, इट अगेन इट जस्ट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लाइक मेरे को कुछ लोगों को कुछ लोगों को चाय पीने से या कुछ भी गर्म टी पीने से, ये सब पीने से उनको लगता है गला खुल जाता है, तो मेरा नहीं खुलता, मेरा इनफैक्ट बहुत चोक हो जाता है। अगर मैं ग्रीन टी पी लूं या ब्लैक टी पी लूं या ब्लैक कॉफी पी लूं तो मेरा ड्राई हो जाता है। वही सेम टाइम पे अगर मैं सिर्फ नॉर्मल सादा रूम टेम्परेचर पानी पीऊं या अगर थोड़ा ठंडा पीऊं तो भी चलेगा, तो मेरा गला सही रहेगा। तो ये एक भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, खाने पीने का भी। एंड फिर बाद में तीसरी चीज, बाकी तीसरी चीज यही होगी कि एक लाइक फॉर लोगों को लगता होगा नहीं, म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, तो ये पूरा टाइम एक बहुत आर्टिस्टिक मूड में रहता होगा, ये बहुत ऐसा रहता होगा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई थिंक ये बस एक बना दिया, ये आई थिंक फिल्मों ने बना दिया ये एक चीज कि ये तो आर्टिस्ट है तो ये कुछ कहीं खोया ही रहता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आर्टिस्ट भी बहुत बहुत सेंसिबल और बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं कि उनको लाइक आज के टाइम पे तो इनफैक्ट बनना भी पड़ता है। उनको पता है कि वो जो कर रहे, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ वॉट एवर दे आर डूइंग। ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट के नाम पे कुछ भी कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे और लोग सोचेंगे अरे कोई नहीं आर्टिस्ट है, ये लोग तो ऐसे ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरीवन इज वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट दे आर पुटिंग आउट, हाउ दे आर सिंगिंग, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। तो ये आई थिंक एक मिथ है कि आर्टिस्टिक होगा ये, वो बहुत आर्टिस्टिक बंदा है तो यार ये कोई नहीं, ऐसा ही है ये लोग का थोड़ा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन इज वेरी वेल अवेयर ऑफ कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। उतना ही दिमाग होता है सब में जितना एक नॉर्मल एक हाई इंटेलेक्चुअल बंदे में होता है, आर्टिस्ट लोग भी वैसे ही होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ऑब्वियसली दे हैव अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ थिंकिंग, अप्रोच ऑफ डूइंग थिंग्स, बट दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं और क्या आ रहा है सामने। सो ऐसा है। I've also seen you doing a lot of high pitches on the, again on Instagram when I've followed you, Yeah. I've seen you do a lot of high pitch videos and everything. Tell me how challenging is it, and what is something that you've figured out about it that you can share with perhaps budding singers who can, budding musicians or budding artists? So high pitches, like for today's time and era, it's a very important part or a very important thing to have in you as an artist, as a singer, क्योंकि पहले के जमाने में स्केल्स और पिचेस को बहुत नॉर्मल तरीके से रखा जाता था कि एक जो जिसका कोई नेचुरल रजिस्टर है, नेचुरल स्केल है, उसी अराउंड गाने बनते थे। बट आजकल थोड़ा सा उससे इवॉल्व हो गया है, अभी थोड़ा और हायर एंड पे चला गया है। So it's very important for you to keep for all the artists, like उनके लिए बोल रहा हूँ कि to keep the your voice and your register in such a way that you not just high pitches, you're also able to sing the low pitches also. So मतलब पूरा एक आपका ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक पूरा एक register should be very much opened and very much properly opened at all the stages. क्योंकि कुछ लोग क्या होता है हाई पिच सोचते हैं तो वो लोग सीधा सिर्फ ऊपर ऊपर गाने लग जाते हैं और उनका नीचे खराब हो जाता है, एंड देन दे डोंट हैव बेस इन देयर वॉइस। एंड कुछ लोग जो सिर्फ एक डर के मारे सिर्फ एक अपने स्पेसिफिक रेंज में ही रहते हैं कि मैं इससे ऊपर नहीं गाऊंगा या गाऊंगी तो मेरा गला फट जाएगा, ये हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों के लिए एक लाइक जो सजेशन और एडवाइस दैट आई वुड गिव इज कि सबसे पहले तो डरना छोड़ दो कि आपका गला खराब हो जाएगा। डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। गला ऐसे ऐसे ही नहीं खराब हो जाता है।
बहुत एक काफी स्ट्रॉन्ग चीज होती है जिसको खराब होने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी चीजें लगती है। ऐसे आपने ऊपर गा लिया और गला खराब हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। और दूसरी चीज है, डरना छोड़ने के बाद देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऊपर गाने के लिए योर लोज शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये हाल ही में, मतलब मैंने पहले भी सीखा था जब मैं अपने गुरुजी के पास जाता था। मैं जब सिंगिंग रियाज सीखता था, सब सीखता था, तो मेरे को सबने यही बोला था कि जितना खरज आपका या जितना लो नोट्स आपके अच्छे होंगे उतना ही ऊपर भी अच्छा होगा। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया था प्रैक्टिकली, उस वक्त से मुझे कहा गया था और मैं जैसा बोलते थे वैसा करता था। लेकिन अब जब मैं खुद चीजें करता हूँ या खुद अपने आप पे बैठ के जब व्हेन आई एम वार्मिंग अप प्रैक्टिसिंग, सो आई रियलाइज दिस थिंग कि when you sing low notes, when you sing एकदम नीचे आपके आप सुर लगाते हो, so you're basically opening up your vocal का, यहाँ पर ना it's a very practical thing, जो phlegm होता है basically गले में, हर किसी गले में phlegm होता है। Yeah. वो जब आप नीचे गाते हो ना, so आप उसको you're digging that up and you're clearing that space। आप जितना नीचे, it's like आप you're digging a hole, like when you dig a hole you're clearing that space। तो जब आप नीचे गा रहे हो you're clearing that phlegm, and जब आप phlegm clear कर रहे हो, आपका ये जो और and this is a muscle, vocal Yeah. is just a muscle, it's nothing else। आपके सुर सब यहाँ पर है, आपके सुर यहाँ है ही नहीं। ये भी एक अलग चीज, ये भी चौथी चीज है जो सिंगर, जो लोगों को नहीं पता है म्यूजिक के बारे में, कि आपका जितना भी सुर है, जितना भी सब कुछ है, इट्स ऑल हियर। हियर इज जस्ट अ मैकेनिज्म ही बोलेंगे, हाँ, वोकल मैकेनिज्म है, जो आपका ब्रेन बोलता है कि ये सा लगाना है तो वो सा लगा देता है। अगर आपके ब्रेन को ही नहीं पता है सा क्या है तो इसको ये भी नहीं बोल पाएगा। सो जब आप उसको नीचे नीचे आप उसको डिग करते हो, खरज गाते हो, तो आपका फ्लेम क्लियर होता है। एंड जब आपका फ्लेम क्लियर होता है, आपका ये रजिस्टर और खुल जाता है। एंड व्हेन दिस इज ओपन, व्हेन यू सिंग, व्हेन यू जस्ट रिलैक्स, तो आपका पूरा अंदर से आता है, एंड यू हैव मोर पावर। सो व्हेन यू हैव मोर पावर, यू सिंग द हाई पिच आल्सो देन। This is all the science related, based on like it's all very science related for your vocals। There's nothing, कोई मैजिक नहीं है, कोई ऐसा टैलेंट भी है, बट एक साइंस भी है कि आप जितना नीचे से आप गाओगे, जितना आप उसको खोल रहे हो, आप उतना ऊपर गा पाओगे। अगर आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर गाते हो, तो उसका भी साइंस ये है कि when you're just singing up, तो you're using your vocal muscle in such a way कि वो आधा ही यूज कर पा रहा है। It's not utilizing its whole potential। तो जब वो आधा यूज कर पा रहा है, तो वो जल्दी थक जाएगा और वो जल्दी बैठ जाएगा, या जल्दी ऐसा हो जाएगा कि लाइक you'll feel tired easily। सो इसलिए बोलते हैं कि जब आप जितना नीचे जाओगे उतना आप हाई पिच गा पाओगे। एंड नीचे एंड हाई का दोनों मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नीचे गाओ या सिर्फ आप हाई गाओ, नहीं तो आपका बहुत गला अटक सा रह जाएगा, अटक के रह जाएगा, खुलेगा नहीं कभी। तो ये एक आई वुड लाइक टू एडजस्ट कि एक तो डरना छोड़ दो, और आप नीचे और ऊपर दोनों बराबर से गाओ आप अपने। और ऐसा भी नहीं कि गले को, ये भी नहीं सोचो कि मैं नीचे जाऊंगा तो मैं इतना नीचे चला जाऊंगा कि मैं बहुत ऊपर भी चला जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। एक तरीका है, एक स्केल है, एक मेल और फीमेल का स्केल है, उस हिसाब से आप नीचे जाओ, उसी हिसाब से ऊपर जाओ, सब बराबर बैठ जाता है। एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। ज्यादा उस पे फोर्स करने की जरूरत, सो दैट ऑल वो अपने आप हो जाता है। सो ये हाल ही में मैंने खुद रियलाइज किया, जब मैं खुद से अपने साथ बैठा हूँ इतने टाइम से। पहले मैं गुरुजी के पास जाता था, वो जो बोलते थे मैं कर लेता था, वो मुझे प्रैक्टिकली समझ नहीं आता था। व्हेन यू सिट विद योर ओन सेल्फ, अकेले आप बैठते हो, देन यू गेट टू नो अबाउट योर बॉडी एंड अबाउट योर माइंड एंड अबाउट योर एवरीथिंग मच मोर क्लियरली। तो ये मैंने भी हाल ही में जाना। It also brings me to a point that I often ask every. I mean, I've had two really big stalwarts on the show. One was Bindu Subramaniam and one was Tala Badri from the region यहाँ पे in the Middle East. And I had asked them also this question, that it's so much more than just that song. It's so much more internally. It works on your mental health. It also allows you to connect with so much of diversity. And I know through your interviews as well, I've seen that you're very passionate about addressing that. How do you think music allows you to reach out and address cultural diversity in today's times and kind of cut through all the borders and boundaries that we are typically aware of? Like they say ना कि music has no language। So basically, even if you're आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में हो, if you are connected to that frequency, एक म्यूजिक इज ऑल अबाउट अ फ्रीक्वेंसी, इज ऑल अबाउट दैट। सो एक पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हो, एंड इफ यू आर सिंगिंग
भले आप अपने अपने ही लैंग्वेज में गा रहे हो, बट इफ यू सिंगिंग विद दैट फील एंड दैट इमोशन एंड दैट फ्रीक्वेंसीज, वो जब कनेक्ट हो जाती है, सो सामने चाहे कोई भी बंदा हो जो कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी उनका कल्चर बैकग्राउंड हो, वो कनेक्ट कर जाएंगे और उनको वो फील हो जाएगा. So it's when, so basically it's about the emotions that you let the emotions travel through your music. तो इमोशन डालना इज अ वेरी ह्यूमन थिंग. उसमें कोई कल्चर नहीं है, उसमें कोई किसी का लैंग्वेज नहीं है, उसमें कोई ट्रेडिशन का देखना वेखना नहीं है. इमोशन तो हर इंसान में एक, इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट थिंग. तो वो इमोशंस को आप जब डाल देते हो म्यूजिक में, चाहे फिर वो कोई भी लैंग्वेज का हो, वो इमोशन आपने सही तरीके से डाला तो सामने वाले को इमोशन समझ जाता है, एंड उसको पता लग जाता है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे, व्हाट यू आर ट्राइंग टू मेक द अदर पर्सन फील, व्हाट इज योर म्यूजिक टॉकिंग अबाउट. वो दे गेट दैट आइडिया ऑफ. तो आई थिंक इमोशंस डालना, फील डालना, एंड वो भी दिल से. ऐसा ही नहीं कि मतलब आपने बस एक सोच के डाल दिया कि रोमांटिक सॉन्ग है तो हाँ रोमांस के साथ डाल, ऐसा नहीं. वो पूरा फील करना पड़ता है. एंड व्हेन यू फील दैट, यू कनेक्ट विद दैट फ्रीक्वेंसी, एंड व्हेन यू कनेक्ट टू दैट फ्रीक्वेंसी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज एवरीवेयर. वो सबके अराउंड है, उस वो इधर पूरे दुनिया में है कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी. जब आप कनेक्ट कर जाते हो तो सबके साथ आप देन यू कनेक्ट विद एवरी ऑटोमेटिकली. सो आई थिंक दैट्स Is there some amount of prep that goes into connecting with that frequency? Like, is there, like, say for example, अभी जब कोई actor scene emote कर रहा है and it's a romantic scene, they have that entire setup or whatever created. But when considering if you're playing in playback and you're in the studio, how are you kind of getting into that zone? Is there so something? सो बिफोर यू गेट इनटू द स्टूडियो, उसके पहले का जो प्रेप है, उसमें इट्स वेरी मच सिमिलर टू मेडिटेशन बेसिकली. कि आप बैठ गए हो एक जगह एंड यू आर जस्ट मेडिटेटिंग, यू जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ. आप उस एक सा को पकड़ के उस पे पूरा मेडिटेट करके उस पे फोकस करके, सा की भी एक फ्रीक्वेंसी है. एंड हर आदमी का, हर इंसान का अपना एक स्केल होता है. तो आपने अगर अपने स्केल का एक सा पकड़ लिया, कोई भी स्केल हो, जो भी जिस स्केल पे आप कंफर्टेबल हो, उसका सा पकड़ लिया, वो फ्रीक्वेंसी पकड़ ली है, देन यू नीड टू रियली clear your mind, get away from the distraction. It's then as similar to as meditating, and just uh, listening to that frequencies, humming that frequency, filling up your mind with that frequency, and then that's how you get connected to that one frequency. And जब एक से आप कनेक्ट कर जाते हो, फिर वो सारी फ्रीक्वेंसी से आप कनेक्ट कर जाते हो ऑटोमेटिकली. जैसे बोलते हैं ना कि सा, आपने इंटरव्यूज में देखा होगा, बहुत सारे सिंगर्स बोलते हैं कि सा लगाना बहुत जरूरी है, सा गाना बहुत जरूरी है. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट कि वो जो फ्रीक्वेंसी है सा, जो आपका रूट है, जो आपका जंक्शन है, जो स्थान है आपके गाने का, उसके साथ आप एक बार कनेक्ट कर जाओगे, तो सा से लेके ऊपर के सा तक, सारेगामा पधा सा सब कनेक्ट हो जाता है. आपके सब अपने आप आ जाते हैं आपके पास. दिस इज द दिस इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी मच एक्सप्लेनेबल इन एनी साइंटिफिक वे, बट दिस इज लाइक वो अपने आप हो जाता है. इट्स ऑल फ्रीक्वेंसीज. तो आप वो फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर जाते हो, एंड that's how that's the prep that you can do to connect with that frequency. And उसके बाद, अच्छा, frequency connect करने के बाद भी emotion and feel, तो then it depends on the person. उनका कैसा इमोशनल कंटेंट है, उनका किस तरीके से सोचने का तरीका है, एंड हाउ डू दे फील एंड ऑल, उन वो डिपेंड करता है. देन दैट इज योर होल माइंड एंड बॉडी पुटिंग डाउन इन दैट सॉन्ग, देन आपका इमोशन निकल के आता है. तो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करना एंड इमोशन डालना, टू डिफरेंट थिंग्स. लोग फ्रीक्वेंसी कनेक्ट कर पाते, इमोशन नहीं डाल पाते. लोग इमोशन डाल देते हैं कि वो सुर में नहीं गा पाते, फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करने. वो दोनों को कनेक्ट करने में अलग अलग प्रेपरेशन है. सो वो करना पड़ता है, वो स्टूडियो से पहले ये सब चीजें करनी. दिस इज माय वे ऑफ डूइंग. सबके अलग अलग तरीके भी होंगे, बट एक ये तरीका है जो मैं आई यूजुअली डू. There's another very important point that we had discussed long back on the podcast, and that is कि ये सब clutter के बीच में, when there are so many platforms, there's so much of competition. People are having remakes happening. There's original songs coming in. There's all of that happening. And how does one stay authentic? And what do you have to say to budding musicians who are looking to make it big out there about being authentic to their roots? So it's like, so you spoke about the remakes and the original thing. So इसमें this is a very big debate,
एंड इसमें द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द कमर्शियलनेस ऑफ इट. तो लोग रीमेक्स इसलिए बना रहे, लेबल्स बेसिकली रीमेक्स इसलिए बना रहे क्योंकि इट हैज अ कमर्शियल एंगल टू इट. उनको पता है कि ये गाना जो सालों से लोगों ने सुना हुआ है, तो उनके पास बैठा हुआ है दिमाग में, तो शॉर्ट एक नो रिस्क वो गैम्बल है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, हम इसका रीमेक बना देंगे, इसको डालेंगे, अच्छे से सब करेंगे, शूट करेंगे, अच्छे स्टारकास्ट पे प्रेजेंट करेंगे, ये गाना चलेगा ही चलेगा, हमको कोई रिस्क नहीं लेना है. तो वो रीमेक से इसलिए बनाते कि उनको रिस्क नहीं चाहिए. और वहीं पर ओरिजिनल कंटेंट के लिए ऑब्वियसली अभी तो इतने सारे कंपोजर्स हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं जो अपना बहुत आए दिन कुछ ना कुछ एक ओरिजिनल बनाते हैं एंड दे कीप पुटिंग इट आउट देयर. बट इन ऑर्डर टू स्टे ऑथेंटिक, तो आई थिंक उसके लिए द आर्टिस्ट नीड्स टू बी कनेक्टेड टू देम देयर ट्रू सेल्फ. मतलब उनको फिर ये सब नहीं सोचना है कि वो बंदा रीमेक बना रहा है तो मैं भी उस तरीके से रीमेक ही बनाता हूँ, या वो बंदा ने वो उस इंसान ने आर्टिस्ट ने इस तरीके से ओरिजिनल बनाया तो मैं भी शायद इस तरीके से बना के देखता हूँ. वो नहीं है. यू बी कनेक्टेड टू योर ट्रू सेल्फ, व्हाट यू थिंक यू कैन डू द बेस्ट, एंड उसमें आपकी फिर ऑथेंटिसिटी सबसे बेस्ट रहेगी ओरिजिनल गाने में. आप अगर किसी को फॉलो करके किसी को सोच के बनाओगे तो हमेशा यूल बी 50-50, आधा यहाँ रहेगा आधा वहां रहेगा, तो आप ऑथेंटिक नहीं रह पाओगे, आप शायद बेस्ट चीज नहीं बना पाओगे. बट अगर आप खुद अपने आप से कनेक्ट करके बनाओगे तो क्या पता आप यूनिक भी बना जाओगे, बेस्ट भी बना जाओगे, जो शायद किसी और ने सोचा नहीं होगा, एंड वो कुछ नई चीज होगी एंड लोगों को कनेक्ट कर पाएगी. दैट्स हाउ यू कैन मेंटेन, एन आर्टिस्ट कैन मेंटेन देयर ऑथेंटिसिटी. बाकी सब चीजें फिर वो छोड़ना पड़ता है, वो डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ता है. और अगर किसी को सिर्फ पैसों के लिए बनाना है फिर वो उस तरीके से बनाए, अगर सिर्फ कमर्शियली बनाना है तो फिर वो उस तरीके से बनाए कि यार वो चल रहा है तो मैं यही बनाता हूँ, या ये ट्रेंड चल रहा है तो यही बनाता हूँ. दैट्स द डिफरेंस. What's next, Asa? What are you looking forward to? That's my last question to you. Next, as in for the like the coming up projects and all lined up things. Yes, and also for you in general in life. What is it that you're looking forward to? So अभी next में तो there are a lot of songs that are lined up जो इस साल रिलीज होने वाले हैं. Originals है, indie है, with people, with composers from Bollywood, like big composers. I can't name the songs also, but I'm really looking forward to that. And एक जो गाने से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो है जो मैंने 2023 में गाया था, कैसे अब कहें, फॉर द सीरीज, which was a massive hit and still going very well on all the streaming platforms. उसके सेकंड सीजन का गाना बनाया हुआ है एंड वो आने वाला है, आई थिंक मे बी नेक्स्ट मंथ और मे बी एंड ऑफ दिस मंथ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट क्योंकि दैट सॉन्ग has given like a different name to me, you know. उस गाने से मुझे बहुत ही वर्ल्ड वाइड एक बहुत ज्यादा एक वायरलिटी, अप्रिसिएशन, सब कुछ जो भी बोल सकता हूँ मैं, वो उस गाने से मिला. तो उसका वो गाने से इतना वो बड़ा हो गया सब कुछ कि सेकंड सीजन में दे अगेन हैव केप्ट दैट, यू नो, अ सॉन्ग फॉर दैट सीजन, फॉर दैट सीरीज. एवरीथिंग इज सेम, द कंपोजर इज सेम, द मी एंड दैट फीमेल सिंगर, हम लोग सब सेम है. सब ने वापस से एक तरीके से जुट होके फिर एक गाना बनाया है फॉर द सीरीज, एंड बहुत प्यारा गाना है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. उसके अलावा बहुत सारे और गाने हैं विच आर लाइंड अप, डिफरेंट लेबल्स है, इंडीज है, सब गाने हैं. एंड आई एम मोस्टली फोकस्ड ऑन पुटिंग आउट माय ओरिजिनल कंटेंट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अब मैं एक पॉइंट पे ऐसे आ गया हूँ कि मुझे बस अपना अपना ओरिजिनलिटी, अपना एक ओरिजिनल साउंड आई नीड टू पुट आउट देयर for the audience. And yeah, so all this is very much lined up. And अपने लिए जो मैं सोचता हूँ कि अब बस वो है कि अब मुझे, जैसे मैंने बोला, अब मैं ऐसे पॉइंट पे आ गया हूँ कि मुझे, जैसे मैंने सोचा था कि जब मैंने स्टार्ट किया था कि यू नो मेरे पास ऐसे होगा वैसे होगा, तो वो सब चीजें हो रही है. लाइक I'm every day I'm singing a new song for someone or the other. Every day I'm working on a new song in some way or the other. So that's really very exciting for me. So a lot of new things are happening every day, which keeps me excited. So I think इसके बाद से अब मुझे लगता है कि वो एक अब ऐसे पॉइंट पे आएगा कि all of these things are getting on a different level now. Like you know, अब तक मैं जिस तरीके से काम करता, अब वो एक अलग लेवल से जाके कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में या कोई बहुत बड़े तरीके से बाहर it's going to be presented. So I'm just
grateful for to the universe, to God, for everything that's happening in my life right now. And yeah, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सब मुझे, I can just feel it, I can just have that intuition कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें अभी होने वाली हैं, और जब वो होंगी तो वो सब पता चल जाएगा. अभी मैं I can't name it, but बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाएंगी. So I'm really really excited for that and very grateful for that also. मैंने जाना मुझ में तू है, मैंने जाना मुझ में तू है, दिल है नादां कैसे अब कहें, दिल है नादां कैसे अब कहें, तेरे आस पास दिन सारा, ना जाना कब मैं दिल हारा, थोड़ा सा तूने बहकाया, बहलाया दिल को सहलाया, मैंने जाना मुझ में तू है, दिल है नादां कैसे अब कहें. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. It truly touches the heart, and I'm so glad that we've done this interview, because I think my major takeaway from this has also been just that to be able to kind of do what you love doing and to be able to kind of have that vision for it, it means a lot. And I'm so glad to have done this. More power to you. Thank you for your time, and thank you Thank for you so everything. much. Thank you so much. It was a pleasure. I really enjoyed the podcast. I'm so glad to be a part of it, and looking forward to the interview also. Yes. And all the best for your for your podcast venture, and more power to you. And I hope to see much big A-listers on your channel very soon. And yes, all the best. Thank you so much for having me. It was great fun talking to you. Knock, knock. Are you still here? Well, I'm super happy that you are. Thank you so much for watching and tuning in. Please do like, share, and subscribe to Karishma Connect across platforms. And I look forward to bringing you many more such amazing stories from around the world. If you've got one, please do get in touch. Lots of love.